Okay, are you able to see the screen? Screen दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Till now we solved 3 to 4 problems of isometric projection. Okay. Now today we are going for the same one method in isometric projection. Okay. It's also important for exam point of view. Okay. Before that, as I told you, one difference between isometric projection and isometric view or drawing is important, then isometric scale is important for 3 and 4 marks. Okay, today we are going to discuss one another method which is 4 center projection method. Okay, ये method भी आपके exam point of view के लिए important है for 3 और 4 marks. Okay, तो वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो ये स्क्रीन में अगर आप we see one 3D object. Okay, just tell me how this circle is looks in आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और 3D डायमेंशन. ओके, यहाँ पे आपको एक 3D डायमेंशन दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है. ओके, तो उसमें सर्कल आपको कैसा दिख रहा है? व्हाट इज शेप दिस सर्कल हैव इन दिस फिगर? ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्कल. आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? इसमें जो सर्कल दिख रहा है, व्हेनेवर वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, okay, we draw this circle. Okay, but in this figure or 3D image, okay, it's not look a circle. Then how it looks? Ellipse, sir, ellipse. Okay, very good. Okay, it's look as a ellipse. Okay, it means it indicate that whenever I am drawing the circle in isometric projection. Okay, now in isometric projection we are going to reverse. Okay, this object we construct from the given view. Okay, हमें जो दो व्यू दिए गए, 2 या 3 व्यू, उसमें से हमें ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. Okay, तो व्यू में तो सर्कल दिया होगा, but whenever we convert this 2D into 3D means whenever we are going for isometric drawing, okay, we need to draw ellipse for this circle. ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको व्यू फ्रंट व्यू दिया गया हो या टॉप व्यू दिया गया, अगर उसमें सर्कल दिया गया हो, तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ओके, 3D उसका आइसोमेट्रिक व्यू या ड्राइंग ड्रॉ करोगे, ओके, तो उसमें जो सर्कल है, ओके, उसकी जगह पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? यू शुड ड्रॉ इलिप्स. ओके, तो वो चीज आपको समझाने इसलिए फिगर दिखा रहा हूं. ओके, कि इसमें जो सर्कल है, ओके, व्हेनेवर वी सॉल्व दिस इन ऑर्थोग्राफिक्स, ओके, वी ड्रॉ 2 सर्कल. ओके, फॉर हियर at here we draw 2 circle at here and 2 circle for this hole. Okay, but in this figure it's look as a ellipse. Okay, why? It's because we rotate the object at 120 angle. Okay, so that's the reason why this circle is look as a ellipse. Okay, so whenever we have circle, okay, in isometric projection or circle is given in front view or top view, okay, we should draw ellipse for that circle because it's look as a ellipse whenever we draw in isometric projection. Okay, so we already learned different method for drawing the ellipse. Okay, like rectangle method, arc of circle method, concentric circle method, focus and directrix method. Okay, but we are not using that because it's very time consuming. Okay, so for drawing the ellipse, okay, in isometric projection we use 4 center method. ओके, तो मैंने जो आपको बताया कि हम आज 4 सेंटर मेथड की थियरी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो वो 4 सेंटर मेथड कहां पे यूज होगी? तो जब भी हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा. ओके, इन दैट केस वी यूज द 4 सेंटर मेथड फॉर ड्राइंग द इलिप्स. ओके, जब भी आपको सर्कल दिया गया होगा और उसकी जगह पे हमें इलिप्स ड्रॉ करना होगा, इन दैट केस वी यूज द 4 सेंटर मेथड. ओके, सो 4 सेंटर मेथड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इलिप्स. समझ में आ गया 4 सेंटर मेथड कहां पे यूज करनी है? ओके, बाद में हम देखते हैं. पहले ये समझ में आ गया कि 4 सेंटर मेथड कहां पे यूज होती है और हम क्यों यूज करते हैं. ओके, कहां पे यूज करते हैं? तो जब भी हमें इलिप्स बनाना होगा तब हम यूज करेंगे 4 सेंटर मेथड. और क्यों यूज करेंगे? बिकॉज circle is given in front view or top view, it's look as a ellipse in isometric projection. Okay, so for drawing the ellipse we using the 4 center method. Okay, तो एप्लीकेशन समझ में आ गई आपको कि हम कहां पे यूज करने वाले हैं 4 center method. Okay, now let's see the method कि हमें कैसे ड्रॉ करना है. ओके, अभी सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ड्रॉ करना है. ओके, सो नाउ जस्ट लुक ऑन दी बोर्ड. ओके, चलो सबसे पहले अगर मुझे एक कोई भी व्यू दिया गया है, ओके, उसमें मुझे सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, फॉर एग्जांपल सर्कल इज गिवन इन फ्रंट व्यू. ओके, यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिया गया है फ्रंट. पहले मैं एक सर्कल ले ले रहा हूँ यहाँ पे. ओके, दिस सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर. ओके, इसका डायमीटर कितना है?
50 mm. ओके, तो ये जो सर्कल दिया गया है, ओके, तो ये जो सर्कल दिया गया है उसका मुझे क्या ड्रॉ करना है, ये फ्रंट व्यू में सर्कल दिया गया है. फॉर दिस I need to draw the ellipse for this circle, okay, because as we see, okay, this circle is looked as the ellipse whenever I am drawing its 3D view, okay, or isometric view. Okay, the steps are very simple. As I told you, we start any problem of isometric, okay, by drawing the two line at angle of 30. Okay, तो यहाँ पे मैं दो लाइन ड्रॉ करूंगा at angle of 30. ओके, 30 के एंगल पे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी. अभी सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना है. ओके, तो चलो ये हो गया. ओके, नाउ दिस एंगल इज 30. ओके, दिस गिवन इन दी फर्स्ट व्यू, फ्रंट व्यू, सॉरी. ओके, फ्रंट व्यू में ये दिया गया है. इट मींस इट कंटेन इन लेंथ एंड विड्थ डायमेंशन. ओके, फ्रंट व्यू में हमें कौन सा डायमेंशन दिखेगा, सॉरी, लेंथ एंड हाइट. ओके, फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखेगा. ओके, सो इज either I take length at here or here. Okay, दो लाइन पे से कहीं पे भी मैं लेंथ ले सकता हूं. ओके, I taking length at here. ओके, लेंथ. तो पहले फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप इन 4 सेंटर मेथड. ओके, 4 सेंटर मेथड, 4 center method mainly used for constructing the ellipse. Okay, first step, okay, first make one box by taking diameter as a length. Okay, first I need to make one box by taking diameter as a length. Okay, यहाँ पे diameter, ये खास ध्यान रखना है आपको कि diameter को लेना है length, radius को नहीं. Okay, तो यहाँ पे diameter कितनी दी गई है, 50. Okay, so first I make one box by taking 50 mm as a length. Okay, so I take 50 mm as at here, 50 mm length and 50 mm height. Okay, for height, as I told you, it's a simple rules. For length and width, I draw line at angle of 30, and for height, I simply draw vertical line. Okay, ये rules तो हमारा common है, ये तो याद रखना ही है आपको, कोई भी problem solve करो तो. Okay, तो यहाँ पे length ली है मैंने, यहाँ पे कितनी, 50 mm. बॉक्स बनाना है. ओके, तो उसकी अगर आप यहाँ पे बॉक्स बनाओ ये स्क्वायर के लिए, सॉरी सर्कल के लिए, कि जिसमें ये कंप्लीटली इनक्लोज हो जाए सर्कल. ओके, तो ये बॉक्स कितने का आएगा, तो उसके डायमीटर जितना बॉक्स बनेगा, ये कितना है, 50 का स्क्वायर बॉक्स है. ओके, तो सिंपल ये बॉक्स मुझे यहाँ पे बनाना है पहले. ओके, तो ये हाइट के लिए सिंपल वर्टिकल लाइन आएगी, तो ये भी 50 है. ओके, और ये 50 है. यहाँ पे मैंने लेंथ ली है. ओके, और यहाँ पे हाइट. ओके, नाउ फ्रॉम हियर आई ड्रॉ वन पैरेलल लाइन टू दिस. बॉक्स बनाना है इसीलिए ये लाइन पैरेलल आएगी. ये भी क्या है, लेंथ ही है. अब क्या आएगी, हाइट के लिए कौन सी, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन. ओके, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मैंने क्या किया, ये बॉक्स बना दिया. तो बॉक्स की लेंथ कितनी लेनी है, ओके, लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल. जितना भी मुझे सर्कल बनाना है उसके डायमीटर जितनी लेंथ लेनी पड़ेगी. ओके, तो ये बॉक्स बन गया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, हियर I have two diagonal. Okay, I give names so you get better idea. A, B, C, D. Okay, for this rhombus, okay, it's rhombus. It's not a square. Okay, because in square angle is 90, but here angle is not 90. Okay, so it's simple rhombus. Okay, now just tell me in this rhombus how there are two diagonal. Which two diagonal? Just give me the name of two diagonal. इसमें कौन से दो diagonal मिलेंगे मुझे? डायगोनल तो पता है ना सब, BD and AC. BD and AC, very good. Okay, so here we have two diagonal, BD and AC. Okay, one is major diagonal and second one is minor diagonal. Okay, now just concentrate at here. Okay, here I have two diagonal, one is BD and second one is AC. Okay, now one have major one major diagonal and second one is minor diagonal. Okay, so are you able to
identify which one is minor and which one is major diagonal from this figure. समझ में आ रहा है इसमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर. माइनर डायगोनल मींस जिसकी लेंथ कम होगी और मेजर मींस जिसका लेंथ ज्यादा होगी. ओके, तो इसमें से मेजर डायगोनल कौन सा है और माइनर डायगोनल कौन सा है? ओके, हियर वी हैव टू डायगोनल. AC is major diagonal. Okay, it's clearly seen. Okay, so here we have two diagonal. One is AC and second one is BD. AC is major diagonal and BD is minor diagonal. Okay, तो आपको ध्यान क्या रखना है? Okay, name of the method is four center method. Okay, so we use four center to draw the ellipse. Okay, ellipse draw करने के लिए मुझे four center चाहिए. 1 2 3 4. Okay, तो उसमें से देखो I am taking 2 point of minor diagonal. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से 2 पॉइंट लेने हैं. डायगोनल के तो लेने हैं, लेकिन जो माइनर डायगोनल होंगे उसके 2 पॉइंट आपको लेने हैं. ओके, मेजर के नहीं लेने हैं. ओके, तो मेरे 2 सेंटर कौन से हो गए? बी और डी. ओके, तो फर्स्ट 2 सेंटर मैंने फाइंड कर दिए, अब बाकी के 2 बाकी है. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे 2 डायगोनल है, एक मेजर है और माइनर है. हमें कौन सा लेना है? जो माइनर डायगोनल है उसके एंड पॉइंट है, मींस बी एंड डी. आई टेक बी एंड डी एज अ सेंटर. ओके, सो आई हैव 2 सेंटर. नाउ आई नीड 2 मोर सेंटर. ओके, तो वो 2 सेंटर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, आई एम ड्रॉइंग द मिड पॉइंट. ओके, और मार्क द मिड पॉइंट फॉर ऑल दी साइड्स. ओके, टोटल लेंथ कितनी है? 50 है, तो यहाँ पे कितने पे आएगी? 25 पे हो जाएगी. आई फाइंडिंग द मिड पॉइंट फॉर ऑल दी साइड्स. Okay, so here and here at distance of 25. Okay, now I am taking B point. Okay, and connect B with, I give name so you get better idea, P Q R S. Okay, here we have 4 midpoints P Q R S. Okay, now I just simply connect B point with the midpoint of the opposite sides. Okay, ये B point की opposite sides ये है CD और AD. Okay, उसके midpoint means I just simply connect A with, sorry, B with Q and B with R. समझ में आ रहा है क्या करना है? Okay, जो ये 2 पॉइंट तो मेरे सिलेक्ट हो गए कि ये 2 को तो मुझे सेंटर लेना ही है. अब क्या करना है? B को किसके साथ कनेक्ट करना है? ये सामने वाली जो 2 साइड है उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करना है, Q और R से. Similarly now connect the D point with the midpoint of the opposite sides. Okay, तो यहाँ पे कौन सी साइड है? AB और BC. Okay, AB का मिड पॉइंट कौन सा है? S. I connect D with the S. Okay, similarly I connect P with the B. Okay, so at the intersection of these 2 lines, okay, I get another 2 center. Okay, so here I have 4 center. Okay, फिर से एक्सप्लेन करूं. चलो, ओके, 4 सेंटर में से 2 सेंटर तो मिल गए. जो माइनर डायगोनल है उसके 2 एंड पॉइंट ये तो मिल गए. अब देखो अब क्या करना है. ओके, अभी सभी साइड है उसके मिड पॉइंट फाइंड कर ले सबको पहले. ओके, मिड पॉइंट मिल गए P Q R S. ओके, नाउ ये जो डायगोनल का एंड पॉइंट B है, ओके, ये हमारा 2 सेंटर है, तो पहले मैं B पे आता हूं. B को क्या करना है? सामने वाली जो 2 साइड है उसके मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है. ओके, तो यहाँ पे कौन सा है? Q और R. सो आई कनेक्ट BQ एंड BR. समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलरली फॉर पॉइंट D, अब D को किसके साथ कनेक्ट करना है? तो ये जो साइड है AB और BC उसके मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है. ऐसे. Okay, so I get another 2 point at here, 1 at here and 1 at here. Okay, I give the name 1 and 2. चलो नंबर दे दिए 1 और 2. Okay, now I have 4 center. Okay, मेथड का नाम ही क्या है? 4 center method. Okay, so here I have 4 center B, D, 1 and 2. Okay, now it's very important. Okay, we are going to draw 4 arc by taking this 4 point as a center. Okay, arc draw करने के लिए मुझे कौन सी चीज चाहिए? एक तो रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए. ओके, तो ये 4 पॉइंट हमने फाइंड किए B, D, 1 और 2.
ओके, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर। ओके, उसको सेंटर लेना है, ये बात याद रखना। ओके, आई एम स्टार्टिंग विथ बी पॉइंट। ओके, फर्स्ट आई टेकिंग बी एज अ, मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट आर्क, फॉर फर्स्ट आर्क आई टेक बी एज अ सेंटर। सेंटर किसको लेना है? बी को सेंटर लेना है, और रेडियस, रेडियस इक्वल टू बी क्यू और बी आर, दोनों की लेंथ सेम ही है। आप कोई भी ले सकते हो, या तो ये लेंथ ले सकते हो या तो ये लेंथ ले सकते हो। ओके, सो यू कैन टेक बी क्यू और बी आर। ओके, आप दो में से कोई भी आर्क ले सकते हो क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही होगी। ओके, सो यहाँ पे आपकी पेंसिल आएगी और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका सेंटर आएगा कंपास का, और यहाँ पे पेंसिल आएगी, इतनी रेडियस लेनी है। नाउ आई ड्रो वन आर्क एट हियर। समझ में आ रहा है? ओके, तो फर्स्ट एक सेंटर का यूज कर लिया। सिमिलरली नाउ यूज डी एज अ सेंटर। अब किसका यूज करना है? डी पॉइंट को सेंटर यूज करना है। ओके, डी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, ओके, रेडियस कौन सी होगी? डी से लेके पी के जितनी या डी से लेके एस के जितनी। ओके, डी से लेके पी या फिर डी से लेके एस, कितनी रेडियस लेनी है आपको? आई पुट माई सेंटर एट हियर एंड पेंसिल एट हियर एंड ड्रॉ वन आर्क। ओके, दिस टू आर्क नोन एज अ मेजर आर्क। ओके, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, सो वी टेल दिस एज अ मेजर आर्क। ओके, तो दो सेंटर का हमने यूज कर लिया। नाउ आई कम टू दी वन पॉइंट। ओके, टेक वन एज अ सेंटर, वन को सेंटर लेना है, और किसको रेडियस लेना है? 1 2 पी और 1 2 क्यू। 1 2 पी और 1 2 क्यू, दोनों की लेंथ सेम ही होगी। ओके, सो आई जस्ट पुट माई सेंटर एट हियर एंड पेंसिल एट हियर। ओके, एंड ड्रॉ वन आर्क। ओके, नाउ आई यूज पॉइंट टू एज अ सेंटर, टू को सेंटर लेना है, रेडियस कितनी आएगी? 2 2 आर और 2 2 एस। ओके, तो यहाँ पे आपका कंपास का सेंटर आएगा, यहाँ पे पेंसिल। ओके, सो इन दिस वे आई ड्रॉ दी इलिप्स फॉर दी सर्कल। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है फॉर दी सर्कल। ओके, सर्कल है उसके लिए, ये देखो, ये सर्कल अगर फ्रंट व्यू में ऐसा है तो उसका मैं आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करूंगा तो ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया? ओके, कैसे करना है? ओके, नाउ अब हम साथ में ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके पहले ओके, सबसे पहले ये तो मैंने सिर्फ फ्रंट व्यू में दिखाया। ओके, ऐसा आपका टॉप व्यू में भी आएगा और साइड व्यू में भी आएगा, कहीं पे भी आ सकता है सर्कल। ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट मेक वन क्यूब। ओके, आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले फर्स्ट मेक वन क्यूब ऑफ 50 mm साइड। ओके, 50 mm साइड का एक क्यूब बनाना है आपको। सो क्विकली मेक वन क्यूब ऑफ 50 mm साइड। ओके, क्विकली बनाओ, क्यूब बनाओ ना, क्यूब बनाना है आपको 50 mm साइड का। सो फर्स्ट क्विकली मेक वन क्यूब। क्यूब तो बड़ा है ना, सभी साइड की मेजरमेंट कितनी है? 50 mm। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, फर्स्ट दो लाइन ड्रॉ करनी है, कितने एंगल पे? 30 के एंगल पे। ओके, ये 50 mm ही है, यहाँ पे भी कितना लेना है? 50 mm लेना है। ओके, नाउ हाइट ऑल्सो 50 mm बिकॉज इट्स अ क्यूब, सो ऑल साइड्स ऑफ 50 mm। ओके, यहाँ पे 50 mm। चलो क्यूब बनाओ पहले।
ओके ये लाइन को पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है जिसकी लेंथ कितनी है 50 एम ही है, और इसको पैरेलल यहाँ। ओके सो कंप्लीट वन क्यूब फर्स्ट। ओके फर्स्ट मेक वन क्यूब ऑफ 50 mm लेंथ। ओके 50 mm लेंथ का एक क्यूब बनाना है आपको, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब। Okay, whenever you complete, just send a message in chat box. ओके ये नाम देने की आपको जरूरत नहीं है, बट लेकिन यहाँ आपको समझना है इसीलिए मैंने ये नाम दिया है। ओके जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको ऐसे नाम देने की जरूरत नहीं है। ओके चलो हम कंप्लीट हो गया है, और उस जिसको मेथड समझ में आ गई है वो ड्रॉ कर सकता है। ओके फर्स्ट ड्रॉ डी इलिप्स। ओके फॉर दी फ्रंट व्यू। ओके यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे। चलो बाकी के लोग क्विकली कंप्लीट करो। ओके यहाँ पे देखो लेंथ और विड्थ ये क्या इंडिकेट कर रही है, लेंथ, सो वी ड्रॉ इट एट एन एंगल ऑफ 30। सिमिलरली विड्थ को कितने एंगल पे ड्रॉ किया है, 30 एंगल पे। लेकिन जितने भी हाइट के डायमेंशन है ये है और ये है, सभी हमने सिंपल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ओके उसके अलावा लेंथ के जितने भी डायमेंशन है वो हमने 30 के एंगल पे ड्रॉ किया। चलो जिसका बाकी है क्विकली क्यूब बनाओ, और कंप्लीट हो जाए तो चैट बॉक्स में मैसेज सेंड करो तो मुझे समझ में आए कितना का हुआ है। ओके यहाँ पे हमने 50 एम का ही बॉक्स क्यों बनाया है, ओके क्योंकि हमारा जो सर्कल है ओके उसका डायमीटर कितना है 50 एम। ओके अगर डायमीटर 40 एम होता तो हम 40 एम लेंथ लेके बना दे। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेंथ कितनी आएगी, तो जितनी भी डायमीटर है सर्कल का उतनी लेंथ लेनी है मुझे। ओके आप जो बॉक्स बनाने वाले हो ओके उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो आपका जो डायमीटर है सर्कल का उसके डायमीटर की जितनी लेंथ होनी चाहिए। चलो बाकी के लोग जल्दी कंप्लीट करो। Okay, this method is important, okay, for exam point of view also. Okay, and we are after that we are going to solve the problem okay related with the circle, okay, in which we use the force center method। अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें सिंपल लाइन वाले प्रॉब्लम थे, ओके कहीं पे भी सर्कल नहीं था। ओके अगर आपने सीट के प्रॉब्लम देखे होंगे तो उसमें सिर्फ फर्स्ट ही प्रॉब्लम था कि जिसमें लाइन सिंपल लाइन होगी। ओके उसके बाद के जो 3 प्रॉब्लम है सभी में सर्कल आता है। ओके इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके तो अगर इसमें अगर आपको कुछ क्वेरी हो गए, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेरी रिलेटेड विद दिस फोर्स सेंटर मेथड ओके देन जस्ट टेल मी एट दिस मोमेंट। ओके फिर बाद में समझेगा ऐसा नहीं, यही इसी टाइम पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हो। ओके यहाँ पे हम 3 जगह पे ड्रॉ करेंगे तो आपको अगर कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा।
ओके फॉर दैट फर्स्ट मेक क्विकली वन क्यूब। चलो क्विकली कंप्लीट करो, बाकी के लोग क्या कर रहे हो? ओके चलो ऊपर ध्यान दो जिन लोगों का कि बाकी है। ओके पहले हम क्या करेंगे? ओके स्टेप बाय स्टेप ही आपको फॉलो करना है। ओके फर्स्ट वी मेक वन बॉक्स। ओके जो हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है, वी आर ड्राइंग फॉर द फ्रंट व्यू। ओके सो फर्स्ट मेक वन बॉक्स एट हियर। तो फर्स्ट स्टेप फॉर सेंटर मेथड का क्या आएगा? फर्स्ट हमें क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ कितनी होगी? जो हमारा सर्कल दिया गया है उसके डायमीटर जितनी होगी। First step. Okay now let's move for the second step. Okay in second step we just identify the minor diagonal. Okay हमें identify करना है क्या? minor diagonal। तो यहाँ पे कौन सा होगा minor diagonal? Okay clear listen, you know need to draw the line। Okay ये आप सिंपल देख के भी आइडिया लगा सकते हो या समझ सकते हो कि कौन सा minor diagonal है। Okay here we clearly see that length of AC is more than length of BD। Okay so B and D is over end point of the minor diagonal। okay इसकी लेंथ कम होगी ना BD की, ये देखो ये कम है ना इससे, इसके कंपेयर में। okay तो ये क्या हो गई हमारे minor diagonal। okay so I select these 2 point as to center। okay मेथड क्या नाम क्या है? फोर सेंटर। तो हमें फोर सेंटर फाइंड करनी है। okay तो उसके लिए सेकंड स्टेप क्या आएगा? जो भी हमारा माइनस डायगोनल है ओके उसके दो एंड पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है। ओके तो हो गया ये दो पॉइंट। ओके नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दी साइड्स। ओके ये सारी साइड है उसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। ये लेंथ कितनी है? 50 है। ओके सो यहाँ पे 25 25 25 25। ओके हो गया मिड पॉइंट। अभी समझना है इसलिए मैं नाम दे रहा हूं, अदरवाइज नो नीड टू गिव द नेम। पी पी क्यू आर एस। ओके नाउ थर्ड स्टेप हो गया, हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया सभी के। नाउ नेक्स्ट स्टेप ओके कनेक्ट द पॉइंट डी। ओके ये जो हमने दो सेंटर मिल गए ना हमें, उसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो। आई एम टेकिंग डी, आई स्टार्ट विद द डी। ओके कनेक्ट द पॉइंट डी विद द क्यू एंड आर और द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ओके इसके दो अपोजिट साइड कौन सी होगी? सी बी और ए बी। ओके तो उसके मिड पॉइंट के साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो डी को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? क्यू के साथ और यहाँ पे आर के साथ। हो गया तो ये पॉइंट के लिए हो गया। नाउ आई कम टू दी बी सेकंड पॉइंट। ओके कनेक्ट पॉइंट बी विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ओके बी के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? एडी और सी डी। ओके तो उसके मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है किसको? बी को। जो हमें दो सेंटर मिले फोर में से। ओके तो यहाँ पे जो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है ओके एट दैट पॉइंट आई हैव अनदर 2 पॉइंट। ओके तो यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट हो गए। ओके यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं हम, एक्स वाई ले लेते हैं। ओके सो हियर आई हैव 4 सेंटर, 1 बी 1 डी, 1 at here x and 1 at y। okay now I have all centers। okay now I just simply draw the arc। okay यहाँ पे जो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे मुझे बाकी के 2 पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है? अब सिंपल आपको आर्क ड्रॉ करनी है। कितनी? 4 आर्क आएगी, 2 मेजर आर्क और 2 माइनर आर्क। ओके ये 4 सेंटर मिल गए ना हमें, डी डी और एक्स वाई, उसको सेंटर लेके हमें आर्क ड्रॉ करनी है। ओके आई एम स्टार्टिंग विथ बी पॉइंट। बी को सेंटर लेना है और रेडियस कितनी आएगी? बी एस। ओके यहाँ पे आपका कंपास का सेंटर आएगा और रेडियस बी एस जितनी है, इसलिए पेंसिल कहां पे आएगी? एस पे। ओके ड्रॉ 1 आर्क यहाँ पे। ओके अब ये हो गया बी का। अब डी पे आते हैं। अब सेंटर फाइंड किया तो उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। ओके आई टेक यूज डी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू डी क्यू। ओके इतनी रेडियस लेनी है, डी से लेके क्यू जितनी या फिर डी से लेके आर जितनी, दोनों की लेंथ सेम ही होगी। ओके तो आपका कंपास का सेंटर यहाँ पे आएगा, पेंसिल यहाँ पे।
ओके, तो ये 2 सेंटर हो गए 4 सेंटर में से। अब एक्स पे ऐड है, टेक एक्स एज अ सेंटर एंड पी एक्स और क्यू एक्स एज अ रेडियस। ओके, तो आपका कंपास का सेंटर यहाँ पे आएगा, पेंसिल यहाँ पे आएगी। हो गया। सिमिलरली वाई, वाई को सेंटर लेना है, वाई आर और वाई एस इतनी रेडियस ले सकते हो आप। हो गए, तो इस तरीके से फ्रंट व्यू का हो गया। चलो अब टॉप व्यू में देखते हैं। ओके, और बाद में ये साइड व्यू का आपको अपने आप से सॉल्व करना है। ओके, टॉप व्यू का देख लेते हैं क्या करना है टॉप व्यू में। ओके, फर्स्ट स्टेप, मेक अ बॉक्स। ओके, दैट वी ऑलरेडी मेड इट हियर। ओके, ये हमने ऑलरेडी बॉक्स बना लिया है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई दी माइनर डायगोनल। ओके, छोटा वाला डायगोनल है वो कौन सा होगा यहाँ पे, जी डी। ओके, आप फिगर पे से आइडिया लगा सकते हो, ये ई सी है, उसकी लेंथ ज्यादा होगी, ये जी डी से। ओके, सो आई सिलेक्ट माई 2 पॉइंट, 1 एट हियर एंड 1 एट हियर। 4 सेंटर में से 2 सेंटर हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ फाइंड दी मिड पॉइंट ऑफ ऑल दी साइड्स। ओके, तो यहाँ पे 50 है तो 25 25 25 एंड 20। ओके, इसका भी कोई नाम दे देते हैं, टी यू और वी। यहाँ पे तो ऑलरेडी पी दिया गया है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करते। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं मेरे 4 में से, इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, सामने वाली साइड है उसके मिड पॉइंट के साथ। ओके, तो जी पॉइंट के लिए देखते हैं तो कौन से पॉइंट हो गए, टी और पी, मिड पॉइंट टी और पी। सो आई जस्ट सिंपली कनेक्ट। हो गए ये। ओके, अब डी को किसके साथ, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट मींस यू और डब्ल्यू के साथ कनेक्ट करना है। हो गए, तो यहाँ पे जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे मुझे बाकी के जो 2 सेंटर है वो मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, W और Z। ओके, तो ये मेरे 4 सेंटर हो गए, W Z G और D। ओके, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट आई स्टार्ट विद दी पॉइंट D। ओके, D को सेंटर लेना है तो रेडियस कितनी आएगी, डी डब्ल्यू या डी यू जी। ओके, तो आपका सेंटर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे। हो गए, अब G को यूज करते हैं सेंटर, तो रेडियस कितनी आएगी, जी टी या जी पी जितनी। ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटर रखना है, यहाँ पे पेंसिल और ये आर्क, ये 2 मेजर आर्क है। ओके, ये 2 आर्क हो गए। ओके, नाउ ये 2 सेंटर तो हो गए, अब ये W और Z पे आते हैं। ओके, आई टेक W एज अ सेंटर और रेडियस कितनी आएगी, डब्ल्यू टी या डब्ल्यू यू सी। ये आर्क हो गई। अब Z, टेक Z एज अ सेंटर, ZW और ZP एज अ रेडियस। ओके, सो इन दिस वे आई ओके, तो हो गया ये टॉप व्यू के लिए। अब साइड व्यू के लिए आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो कंप्लीट इज, एंड व्हेनेवर यू कंप्लीट जस्ट सेंड अ मैसेज इन चैट बॉक्स। ओके, तीनों कंप्लीट हो जाए तभी मैसेज सेंड करना है।
ओके, अब तो आएगा ना इसमें कैसे ड्रॉ करना है, मेथड सेम फॉलो करनी है हमें। पहले बॉक्स बॉक्स हमने ऑलरेडी बना लिया है, उसके बाद उसका माइनर डायगोनल फाइंड करना है। ओके, फिर मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, और जो दो पॉइंट सिलेक्ट है उसको मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सो क्विकली कंप्लीट अप टू दिस, और कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैसेज सेंड करना है आपको। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको। ओके, अभी मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेजी है अटेंडेंस की। ओके, क्विकली कंप्लीट दिस फॉर्म विद इन 2 मिनट्स। ओके, सबसे पहले ये फॉर्म आपको फिल करना है अटेंडेंस का। ओके, क्विकली आई गिव यू 2 मिनट्स। ओके, क्विकली फिल दिस फॉर्म ऑफ द अटेंडेंस फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, ये फॉर्म आपको 2 मिनट में फिल करना है। ओके, सभी काम अभी रहने दो, पहले ये फॉर्म फिल कर दो और उसके बाद ये व्यू बाकी है वो ड्रॉ करो। ओके, सबसे पहले ये अटेंडेंस फॉर्म कंप्लीट करो। ओके, फिल दिस फॉर्म फर्स्ट। ओके, जिसका भी बाकी है क्विकली फिल करो ये फॉर्म।
ओके, और जिसका भी हो गया है वो सीट का 5th नंबर का प्रॉब्लम देखो, 5th नंबर का प्रॉब्लम सीट में। ओके, चलो ध्यान दो, फाइनल वाला जो प्रॉब्लम है 5th नंबर का, उस पर ध्यान दो।
सर माइक बंद છે તમારું. સર હેલો સર. સર માઇક બંધ છે તમારું. સર છે તમારો. હેલો સર માઇક બંધ છે. સર માઇક બંધ છે તમારો. Okay, first we start by drawing two line at angle of 30. Okay, यार 30 के एंगल पे हमने दो लाइन ड्रॉ की है. अब देखो ये प्रॉब्लम अगर डिफिकल्ट हो then we just divide this problem into different part. Okay, first this rectangle base. Okay, यहाँ पे rectangle base है, फिर ये inclined slope. Okay, फिर ये rectangle और फिर ये circle. हम one by one ड्रॉ करेंगे. Okay, एक साथ में सब कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे. Okay, सबसे पहले okay we are going for this बेस. ओके, अब बेस कैसे बनाना है वो हमने आगे के 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. ओके, तो उस पे से आपको आइडिया आ जाएगा. ओके, सो फर्स्ट वी मेक वन बेस, रेक्टेंगल बेस. ओके, जस्ट टेल मी व्हाट्स द लेंथ एंड हाइट, एंड विड्थ फॉर दिस रेक्टेंगल बेस. ये रेक्टेंगल बेस है, उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ कितनी आएगी? सबसे पहले लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी आएगी? 70. हाँ 70. ओके, 20 plus 30 plus 20. Okay, 70. So I take 70 mm here. Okay, now what's the weight? Okay, weight हमें कहां से पता चलेगी? तो उसके टॉप व्यू देखना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट व्यू में तो weight नहीं आएगी. फ्रंट व्यू में तो सिर्फ उसकी लेंथ और हाइट आएगी. ओके, तो यहाँ पे देखो ये टोटल weight कितनी दी गई है हमें? 70. टोटल weight ही आएगी ना, ये weight है और ये लेंथ है. ओके, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हो, ओके, तो वो क्या यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगल. ओके, तो ये क्या हो गई? उसकी weight और ये उसकी लेंथ. तो weight भी कितनी है? 35 प्लस 35 कितनी? 70 है. ओके, तो यहाँ पे मैं weight ले लेता हूं 35. ये डिस्टेंस भी कितना है? 35. ओके, ये भी 35 है. ओके, नाउ क्या बनाना है हमें? रेक्टेंगल बॉक्स से. ओके, तो सेम इतनी लेंथ यहाँ पे आएगी. ये तो सभी साइड सेम ही है, 35 की है. ओके, सो आई ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एट हियर. एंड पैरेलल टू दिस लाइन एट हियर. ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बेस है वो मैंने लेंथ और विड्थ के लिए ड्रॉ कर दिया है. नाउ व्हाट्स अबाउट द हाइट? ओके, हियर हाइट इज गिवन 20 mm. हाइट कितनी है? 20 mm. फॉर लेंथ एंड विड्थ आई ड्रॉ लाइन एट एंगल ऑफ 30. ये लेंथ ले ली, ये विड्थ ले ली, कितने एंगल पे है? 30 पे. सिमिलरली ये लाइन भी कितने एंगल पे है? 30. नाउ फॉर द हाइट, ओके, एज आई टोल्ड यू, फॉर हाइट वी ड्रॉ दिस सिंपल वर्टिकल लाइन. ओके, हाइट के लिए हमें एंगल पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, सिंपल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हाइट ऊपर भी ले सकते हो या फिर नीचे ले सकते हो. ओके, ऊपर ले लोगे तो क्या होगा? यहां से 20, यहां से 20, 20, 20. ओके, और बाद में जब बॉक्स बनाओगे तो जो हिडन सरफेस है वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी, इरेज करनी पड़ेगी. ओके, सो उससे अच्छा क्या है कि हम नीचे की और हाइट ले लेते हैं. ओके, ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम मैंने, ये प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ये जो बेस क्रिएट किया था वो लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि अगर आप ऊपर की जगह पे नीचे ले लो हाइट, ओके, तो फिर आपको कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो आई टेक 20 एट हियर, 20 एट हियर and 20 at here. Okay, so after that I just simply connect. ओके, तो ये रेक्टेंगल बेस जो फर्स्ट पार्ट था वो हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं.
ओके चलो बेस क्रिएट करो सबसे पहले तो ड्रॉ द रेक्टेंगल बेस फर्स्ट ओके यहाँ तक कंप्लीट करो पहले रेक्टेंगल बेस okay quickly complete up to this ओके ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप ओके ये बेस क्रिएट हो गया मींस यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा ओके ये जो दो लाइन है इसके बारे में हम बाद में देखते हैं ओके पहले यहाँ तक कंप्लीट हो गया ओके अब देखो बेस क्रिएट हो गया अगर आप टॉप व्यू में देखो तो ये जो सरफेस है ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है ओके ऐसा दिख रहा है सो आई जस्ट सिंपली ड्रॉ माय टॉप व्यू एट हियर ओके आप ये इस तरीके से भी नीचे से ऊपर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर जैसे आकाश सर ने क्या करा था एक बॉक्स बनाया था वैसे भी कर सकते हो ओके कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल हो वो आप मेथड यूज कर सकते हो ओके सो आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉ माय टॉप व्यू ये जो मेरा पूरे का पूरा टॉप व्यू है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ओके उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगर आप उसका टॉप व्यू देखो तो एक तो ये रेक्टेंगल है फर्स्ट आई कंप्लीट दिस रेक्टेंगल ओके ये रेक्टेंगल के लिए देखो लेंथ कितनी है सॉरी ये विड्थ कितनी हो जाएगी 35 ये पॉइंट कहां पे होगा यहाँ पे होगा ये लेंथ है ये डायरेक्शन में से मैं देख रहा हूँ ओके इसका टॉप व्यू ये सिंपल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है ये पॉइंट यहाँ पे है ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो 20 + 30 मीन्स 50 सो ये पॉइंट से मुझे कितना लेना है 50 लेना है ये 50 हो गया यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो गया 50 ओके और ये डिस्टेंस कितना है 35 ये डिस्टेंस 35 है तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा पहले देख लो बाद में ड्रॉ करो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये 35 ओके अब रेक्टेंगल बनाना है इसलिए ये साइड को पैरेलल यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी ओके और ये साइड को पैरेलल यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी ओके तो इस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट अभी तक कंप्लीट किया है ओके नाउ कम टू दिस यहाँ पे देखो अगर आप टॉप व्यू को देखो तो यहाँ पे लाइन नहीं है इसका मीनिंग क्या है ये ऊपर से स्लॉट यहाँ पे पार्ट कट किया गया है यहाँ पे पार्ट स्ट्रेट नहीं है ये कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं है ये सरफेस कंटिन्यू नहीं है यहाँ ऐसे सरफेस सी शेप जैसा दिया गया इसका मतलब आप टॉप में से देखते हो तो ऐसा दिख रहा है इतना पोर्शन कट किया है रेक्टेंगल स्लॉट दिया गया है ओके तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये डिस्टेंस हमें दिया गया है ये कितना है 20 है ओके ये डिस्टेंस ये भी 20 ये 20 ये भी 20 है ओके तो ये कौन सी ये सरफेस है यहाँ पे है ये डिस्टेंस ये पॉइंट की बात करूं आप टॉप में से देख रहे हो ये पॉइंट कहां पे होगा यहाँ पे होगा ओके वहां से कितना डिस्टेंस मेजर करना है 20 सो यहाँ से मैं 20 ले लेता हूं ये 20 हो गया ओके फिर ये लेंथ कितनी दी गई है ये भी 20 है लेकिन ध्यान रखना ये क्या है उसकी विड्थ है तो विड्थ 30 पे आएगी 30 एंगल पे आएगी तो ये लाइन के पैरेलल ले लो यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना है 20 तो ये 20 हो गया ये डिस्टेंस 20 है ये डिस्टेंस भी 20 है ओके अब ये लाइन इसकी लेंथ कितनी आएगी
30 ये दी गई है यहाँ पे 30। ओके, तो यहाँ से 30 की लाइन लेनी है आपको, ये 30 हो गई। ओके, अब ये लाइन ये कितनी है 20, तो यहां से आपको ये लाइन के पैरेलल लेनी पड़ेगी, तो यहां से आ जाएगी ऐसे। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी, ये कट दिया गया है इसे, ये ध्यान से देख लो, बाद में ड्रॉ करना। ये हो गई। अभी स्लॉट जैसा दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने डार्क लाइन ड्रॉ की है, इसको रिमूव कर देता हूं। हो गया, लेकिन अभी भी देखो आप, ये स्लॉट जैसा नहीं दिख रहा है। ओके, सम पार्ट और सम लाइन मे बी मिसिंग, इट्स क्लियरली सीन दैट इट्स नॉट लुक लाइक अ स्लॉट। ओके, हम स्लॉट नहीं दिख रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे यहाँ पे लाइन है वैसे ये पॉइंट से भी लाइन होगी, अगर आप इमेजिन करो शेप को। ओके, तो यहाँ पे जैसे 20 mm की लाइन है वैसे यहाँ पे 20 mm की लाइन होगी, ये लाइन ये 20 mm हो गई, ये लाइन है वैसे पैरेलल लाइन यहाँ पे होगी, तो ये हो गया पार्ट। ओके, ये लाइन है वैसी पैरेलल लाइन यहाँ पे आएगी, हो गई ये लाइन के पैरेलल यहाँ पे है ऐसे। ओके, लेकिन वो हम ड्रॉ कर नहीं कर रहे क्योंकि इसके पीछे आ जाएगी। सिमिलरली ये लाइन के पैरेलल यहाँ पे आएगी। ओके, लेकिन ये जो दो लाइन है वो हमें दिखती नहीं है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ ही नहीं करता। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये स्लॉट जैसा दिख रहा है ना। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट दी फर्स्ट बेस। ओके, ये बेस हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्विकली कंप्लीट अप टू दिस। ये तक कंप्लीट करो पहले। ओके, आई थिंक वी नीड ओनली 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। यहाँ तक कंप्लीट करो पहले। ओके, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है ऐसे से, उसका डिस्टेंस 20। चलो, तो ये हो गया और ये हो गया। अब ये रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। ओके, ये डिस्टेंस 20 और ये डिस्टेंस भी कितना है 20। ओके, तो यहां से कितना मेजर करना पड़ेगा 20, और यहां से लाइन। Okay, I need only extra 5 minutes. Okay, so don't leave the meeting. चलो, ओके, सिंपल मैंने क्या किया, जो मेरा टॉप व्यू था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब आप देखो तो यह तक का आपका प्रॉब्लम क्लियर है। ओके, सॉल्व हो गया यह तक का। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ से देखोगे, ओके, तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट को देखोगे तो यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया। देखिएगा ना, ये फर्स्ट जो बॉक्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, ये बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, और बीच का जो 30 वाला पार्ट है वो कौन सा है, ये लाइन 30 की। ओके, तो इसको अगर आप सामने से देखो तो वहां तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो बाकी जस्ट ऊपर देख लो, बाद में सॉल्व करना। ओके, पहले मैं बता दो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब तो सिंपल ही है। ओके, यहाँ पे देखो दो रेक्टेंगल है, एक तो ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। ओके, 1 and 2। Okay, as I told you, whenever there is a complete rectangle, inclined surface or curved surface, okay, it's looked as a rectangle. Okay, so जब भी आपको रेक्टेंगल तो आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा क्या ये रेक्टेंगल ही है, क्या इंक्लाइन सरफेस है या फिर कर्व सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टॉप व्यू में से मैं देख रहा हूँ तो दो रेक्टेंगल है, एक तो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। तो मुझे उसका फ्रंट व्यू देखना पड़ेगा ताकि मुझे आइडिया है क्या ये रेक्टेंगल ही है। तो पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। ओके, पहले रेक्टेंगल देखो यहाँ पे, ये रेक्टेंगल, इसके लिए फ्रंट व्यू में कौन सा, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब ऊपर की सरफेस हमें सिर्फ देखनी है। ओके, तो ये देखो, ये रेक्टेंगल के लिए कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? इसके प्रोजेक्शन में लूंगा तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना है 50 है। ओके, ये डिस्टेंस भी 50 है, ये जो लाइन इसके प्रोजेक्शन ऐसे आए हैं। ओके, तो ये वाला रेक्टेंगल के लिए कौन सा पोर्शन है, यहाँ से इसके ऊपर देखो तो ये वाला पार्ट है, ये भी क्या दिया गया है, रेक्टेंगल ही दिख रहा है। ओके, आप टॉप में से देखो या साइड में से देखो, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल ही दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है ये क्या है, एक रेक्टेंगल स्लैब ही है। ओके, तो जब भी रेक्टेंगल स्लैब है उसका हम व्यू ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक, तो क्या करना है, लेंथ और विड्थ आ गए, सिंपल उसकी हाइट लेनी है। ओके, हाइट यहाँ पे कितनी दी गई है 50। ओके, ये हाइट कितनी है 50 है। ओके, सो आई टेक जस्ट सिंपली हाइट ऑफ 50 फ्रॉम ईच साइड। ओके, ये सभी साइड है, उसमें से हाइट कितनी लेनी है मुझे 50।
ओके अब सिर्फ उसको कनेक्ट करना है। ओके रेक्टेंगल स्लैब बनाना तो अब आ गया होगा। चलो ओके तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा? फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट जो रेक्टेंगल था। नाउ जस्ट लुक इनटू द सेकंड रेक्टेंगल। सेकंड रेक्टेंगल के लिए देखो क्या है। ओके यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल, ये कौन सा पार्ट इंडिकेट कर रहा है? अगर आप देखो तो इसके प्रोजेक्शन ली गई ये वाली सरफेस की। ओके नाउ हियर इट्स लुक एज अ रेक्टेंगल बट इन फ्रंट व्यू इट्स लुक एज अ स्लोप। ओके फ्रंट व्यू से जब आप देखोगे तो यू सी दैट इट्स अ इंक्लाइन सरफेस। ओके इसका मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल है, ओके ये सामने से क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। टॉप में से रेक्टेंगल इंक्लाइन सरफेस होगी, कर्व सरफेस कभी वो क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। इसलिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दोनों एंगल में से। ओके तो ये सेकंड वाला जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअल में रेक्टेंगल स्लैब नहीं है लेकिन क्या है? इंक्लाइन सरफेस। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट से लेके यहाँ तक। तो देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल है। ये पॉइंट है, स्लोप बनाने के लिए क्या करना है? ये रेक्टेंगल के लिए स्लोप ड्रॉ करना है। ये डिस्टेंस कितना है? 20 है। ओके ये पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना है, ये तो हमें पता है स्लोप के लिए, एन सरफेस के लिए। ओके अब देखो यह डिस्टेंस कितना है? ये पॉइंट के लिए 20, सिंपल मेजर 28 हियर और जस्ट सिंपली ड्रॉ वन पैरेलल लाइन टू दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके तो ये स्लोप हो गया। अब आप बाकी की जो अनवांटेड लाइन है वो रिमूव कर दो तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। ओके सिंपल यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तब ये दिखेगा ऐसे। ओके और ये बाकी की जो लाइन है उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि वो पार्ट तो हिडन हो जाएगा, इसलिए ये लाइन नहीं दिखेगी। ओके अब देखो जस्ट इमेजिन करो, इसको मैं टॉप पे से देख रहा हूं तो ये स्लोप क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। तो रेक्टेंगल यहाँ पे, ओके आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो 20 mm है, ये 20 mm। ओके फिर ये 35 वाला रेक्टेंगल, ये जो बॉक्स है ये डिस्टेंस कितना है? 35 का। ओके तो ये जो रेक्टेंगल है वो तो रेक्टेंगल ही है। ओके नाउ वी ऑलमोस्ट कंप्लीट द प्रॉब्लम, नाउ ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग। अब कौन सी बाकी है चीज? तो वो है सर्कल। ओके हमें क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। कहाँ पे? यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। ओके ये फ्रंट व्यू में से दिख रहा है ना सर्कल। ओके एज आई टोल्ड यू व्हेनेवर इट्स अ सर्कल इट लुक एज अ इलिप्स। ओके जब भी सर्कल होगा हम उसका व्यू ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके इलिप्स ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी? जितना इसका डायमीटर है। ओके इसका डायमीटर दिया गया है, कितना है डायमीटर? 35। ओके डायमीटर कितना है? ओके देख लो बाद में ड्रॉ करना। ओके डायमीटर है 35। ओके तो यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं पहले। ये डिस्टेंस 50 है। ओके तो 25 पे यहाँ पे आएगा, ये भी 50 है तो यहाँ पे 25 आएगा। ओके अब बॉक्स कितने का बनाना है? 35 का। ओके तो सेंटर पे से 35 એટલે 17.5 ऊपर लेना पड़ेगा, 17.5 नीचे। ओके 17.5 इस तरफ और 17.5 इस तरफ। ओके नाउ जस्ट सिंपली ड्रॉ द लाइन पैरेलल। ओके तो ये आपका फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हुआ। अभी आपका सर्कल नहीं बना है। ओके बॉक्स हमने कितने का बनाया है? 35 बिकॉज डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 35। नाउ जस्ट सिंपली अप्लाई द फोर सेंटर मेथड। ओके ये जो लाइन है अनवांटेड उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके आप भी रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? उसका जो माइनर डायगोनल है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। ओके तो यहाँ पे नंबर हम नहीं दे रहे, सिर्फ यहाँ से देख लो ये मेजर डायगोनल है, ये माइनर डायगोनल। ओके ये कंप्लीट हो गया। ये मेरे 2 पॉइंट हो गए। ओके 4 सेंटर में से 2 सेंटर मिल गए। अब बाकी के पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मिल गए। अब इसको सामने वाली जो साइड है ये इसके मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और इसके साथ इसको। ओके तो जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे मुझे बाकी के 2 सेंटर मिल जाए। ओके नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके अगर आप नाम नहीं दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे देता हूं ABCD। ओके बी से स्टार्ट करते हैं, बी एज अ सेंटर और दिस मच एज अ डिस्टेंस।
आपका सेंटर यहाँ पे आएगा, पेंसिल यहाँ पे आएगी, ये फर्स्ट मेजर एक्सिस। अब ये भी आ रहे हैं, ए को सेंटर लेना है और ए से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दूसरी मेजर आर्क हो गई। अब सी को सेंटर लेना है और इतना डिस्टेंस, ये माइनर आर्क। अब डी को सेंटर लेना है और ये रेडियस। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। ओके, कुछ समझ में नहीं आओ तो पूछ सकते हो इसमें कौन सी चीज कहाँ से आई है। ओके, सिंपल फर्स्ट वी ड्रॉ दिस बेस एट हियर। ओके, बेस के बाद हमने जो टॉप व्यू है वो सिंपल उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर ये फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए अगर आप देखो, ओके, तो वो क्या है, उसका फ्रंट व्यू देखो तो रेक्टेंगल ही है, इसलिए हमने ये रेक्टेंगल बना लिया पहले तो। ओके, फिर ये दूसरे वाला रेक्टेंगल है, वो एक्चुअली अगर आप उसका फ्रंट व्यू देखो तो क्या है, स्लोप है। ओके, इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया। ओके, फिर सिंपल सर्कल ड्रॉ करना था तो इसके लिए 4 सेंटीमीटर का यूज किया।